static import work है ना. So what I'm doing here कि import static java dot, तो देखते हैं कि किस पैकेज में है सिस्टम. इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लैंग पैकेज में होगी. डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट तो आपके डायरेक्ट प्रिंट एलन से कॉल कर सकते हैं इसको. प्रिंट एलन से नहीं, आई मीन आउट की मदद से हम लोग डायरेक्ट सिस्टम हट जाएगा यहाँ पर. तो नाउ वी कैन यूज आउट डॉट विच मेथड, प्रिंट एलन. Directly we can pass here anything. Name we can pass here and we can run it. Okay. If we are using static import तो हमें क्या सिस्टम लगाने की जरूरत अब नहीं है. Okay. सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं है. Okay. Through this out we can access this println. Okay. Through this out we can access this println. Okay. I hope you understand how this is working. Static import अगर यूज कर रहे हैं, we do not need to require the class name, directly we can access. Okay, तो हम लोगों ने देखो सिस्टम यहाँ से रिमूव कर दिया, right? This is called the static import. Okay, so perspective ambiguity. When the ambiguity will come, for example, they are trying to import this max value, some max value, and this max value belongs in integer as well, and this belongs in a byte as well. So now reference to max value is ambiguity. अगर two package के अंदर है, then it will give the ambiguity problem. Okay, two class contain a variable or method with the same name. It's very common. ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसे सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है. Hence ambiguity problem is also very common in static import. तो static import जब आप कर रहे हो तो there may be a chance कि वहाँ पे ambiguity की problem आ सकती है. While resolving static members, compiler will always gives the precedence in the following order. Current class static members को देगा, then explicit import को देगा, then implicit import को देगा. Okay. Okay. So for example, import static java.lang.integer.max value and another इसमें क्या दिया, import static java.lang.byte, और ये कौन सा इसमें import कर रहे हैं? I mean what types of import we are doing? Implicit. Okay. This we are doing the implicit. तो ये प्रायोरिटी पहले किसको देगा? जो वैल्यू हमारे क्लास के अंदर होगी. जैसे स्टैटिक इंट मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 99, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देगा आपके क्लास में जो वेरिएबल है उसको प्रायोरिटी. सेकंड नंबर पे देगा ये किसको? एक्सप्लिसिट इंपोर्ट को. थर्ड नंबर पे वो देगा इसको इम्प्लिसिट इंपोर्ट को. तो प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड इन दिस वे. If we are commenting line 1, then if we are commenting this line 1, then this is giving the priority in a explicit. Okay. If still we did not get this, if we are commenting this as well, then we will get this from explicit. Okay. So if we are commenting line 1, then explicit static import will get priority. Hence we will get integer class max value. Okay, some output will come in this way. If we are commenting line 1 and 2, then max value will be considered and we will get some 127, or maybe I mean this will get from there byte. Okay, so strictly speaking, usage of class name to access static variable method improves the readability of code. इससे क्या होता है? Readability code of improve हो जाती है. Hence it is, लेकिन इससे confuse, hence it is not recommended to, तो
guys, what is the term? Strictly speaking, the class name to access a static variable and method improves readability of code, hence it is not recommended to use static import. इस वजह से यूज नहीं करना चाहिए, चीजें कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई. ओके, static variable method improves readability of code, hence it is not recommended to use static import. Static import बेसिकली क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है. तो जब आपको नीड नहीं है, then we should avoid it. Otherwise, definitely it is improving because we are writing the less code. Wherever we are writing the less code, readability is going to improve. Normal import versus static import. So we can use normal import to import classes interface of the package. Whenever we are using general import, it is not required to use fully qualified name. We can use short names directly. So we can use a static import to import static variables methods of a class. So whenever we are using static import, then it is not required to class name to access those static members. Members means the variable and the method. We can access them directly. So that we have seen as well. Okay. So static import, I hope you all should be in position to give the answer. If we are using static import, it means हम लोग उसको without name we can access. Okay. Directly we can access. Okay. So the another topic is going to start, that is called the package. Package पे हम लोग basically already discuss कर चुके हैं, but we can discuss more on this package. Package is very important part of coding. So what do you mean by package, है ना? So it is an encapsulation mechanism to group related classes and interface into a single module. The main purpose of package, इसके ये 3 point है ना, ये बहुत important point है. So what we are doing, it is an encapsulation mechanism. तो आप अगर इसको देखोगे ना, हम लोग स्टार्टिंग से ही इसमें पैकेज बनाते आ रहे हैं. If you will see here, com.rsc.arrays, all the array related class belongs in this package. Okay. com.rsc.coding standard, all the coding standard classes belongs to coding standard package. com.rsc.data type, all the data type related classes belongs to in this package. com.rsc base, it is a common package. Okay. So we are just separating by using the sub package of like data type, like coding standard, like arrays. Getting? तो इससे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, we are just encapsulating in one package all related classes. इसमें interface भी हो सकती हैं. It can also contain the abstract class also. So we can see it is an encapsulation mechanism to group related classes, okay, and interface into a single module. The main purpose of package क्या है? To resolve naming conflict. Naming conflict कैसे resolve कर रहे हैं हम लोग इससे? देखिए, टेस्ट क्लास आपका array पैकेज के अंदर है, and this test class belongs in some other, not in this. Let me here also com.rsc.demo, but there is no naming conflict here. Okay, एक पैकेज के अंदर सेम नाम से मैं more than one class I cannot create. Okay, because I mean the name conflicts will create here. To resolve, what we are resolving? Naming conflict. The first point, to resolve naming conflict. The second, to provide security to the classes and interface so that outside person cannot access directly. And it is also providing the security. वो आगे हम लोग very soon we will talk about how it providing the security. The most there are 4 modifiers we will talk about: public, private, static, and default. There we will understand how this point we are using. It improves modularity of the application. तो इससे क्या improve हो रहा है? आपके application का modularity, I mean separate, उससे related classes contains in that package. So modularity style programming we are achieving. And I think I have already explained here. The real project में हम क्या करते हैं? What we do in real project?
तो देयर इज अ यूआई हो भी सकता है, इसकी जगह कुछ क्लाइंट भी हो सकता है। ओके, क्लाइंट भी हो सकता है इसकी जगह पे। क्लाइंट क्या बोल रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस। ओके, सी सो and here is a database that is called the database. Okay, so this is a standard which we need to follow while we write the code as well. और जितने भी डेवलपर हैं सभी को ऑलमोस्ट पता होता है कि ये स्टैंडर्ड, आई मीन एवरीवन follow these standard. Okay, so this is called database. This is called database. Okay, so we can say how we can define the, okay, so let me put like this. Okay, from the UI request will come on this controller, controller to request will come on the service, service से request आपकी जाएगी DAO पर, and DAO से request will go on the database. यहाँ से आपका response back आएगा, response back come to database to DAO, and from the DAO to service, and from the service to controller, and from the controller to UI. Here it will. आपके सर्विस लेयर के अबव होता है इंटरफेस, ओके, एंड डाओ लेयर से अबव होता है आपके इंटरफेस। ओके, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है व्हाट इज इंटरफेस, वेरी सून वी विल टॉक अबाउट। सो ऑल द क्लास वी विल इम्प्लीमेंट, है ना, हियर वी विल इम्प्लीमेंट दीज क्लासेस। ओके, बट सी, so we can put here some arrow signs, we can understand the how from where request is coming and where it is going. Okay, so it is going here, no worry, प्रॉपर डायग्राम आई विल क्रिएट, तो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, अभी तो मैं जस्ट यू नो कैजुअली जस्ट आई एम क्रिएटिंग। ओके, सो इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, ये तो आपका यूआई हो गया, और यूआई हम लोग किसमें लिखते हैं, एचटीएमएल होगा इसके लिए, राइट, कॉमा सीएसएस होगा, एंड क्या होगा इसमें, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, देन आपका एंगुलर हो सकता है ना, रिएक्ट हो सकता है, रिएक्ट जेएस हो सकता है। ओके, ईटीसी, और इसमें ये आपका यूआई का टूल्स टेक्नोलॉजी, ये यूआई का फ्रेमवर्क हो गया, है ना, एंड इसकी ये टेक्नोलॉजी हो गई यूआई की। और स्टैटिक कंटेंट के लिए हम लोग एचटीएमएल यूज करेंगे, डिजाइनिंग के लिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं, बट इट्स ओके। यहाँ पे आपको ये क्या हो जाता है, कंट्रोलर, दिस इज नथिंग कॉल्ड द कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर, सो कंट्रोलर आपका किस किस में हो सकता है, सर्वलेट हो, सर्वलेट में कंट्रोलर बना सकते हैं। सर्वलेट इज नथिंग, एडवांस जावा में हम लोग सर्वलेट पढ़ेंगे, इसमें स्टड्स 2.0 एक फ्रेमवर्क हो सकता है, हालांकि आउटडेटेड हो गया, अभी यूज नहीं होता, बट रियली कुछ कुछ कंपनियों में मिलेगा आपको। और इसकी जगह स्प्रिंग एमबीसी, अभी जो करंट में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, स्प्रिंग एमबीसी। ओके, तो ये सब चीज, ये क्या हो गया आपका कंट्रोलर हो गया। ओके, ये आपकी क्या होगी, सर्विस IMPL। ओके, सर्विस IMPL। ओके, आई डोंट नो हाउ आई कैन रिमूव दिस, एनीवे ये आपका क्या हो जाता है, डाओ IMPL होगा यहाँ पे, डाओ IMPL। ओके, डाओ IMPL। ओके, so and this is nothing called the database DB। okay, तो अगर इसके लिए मुझे पैकेज लिखना है तो हाउ आई विल राइट दी पैकेज, सी कंट्रोलर के लिए जो पैकेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोलर के लिए पैकेज होगा, देन क्या होगा, हियर आई एम क्रिएटिंग वन पैकेज ऐसी, com डॉट, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर द सिटी बैंक। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर द सिटी बैंक, पैकेज क्या बनेगा, com डॉट सिटी बैंक डॉट कंट्रोलर। देन अगला स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टैंडर्ड हियर, दूसरा पैकेज कैसे बनेगा यहाँ पे, com डॉट सिटी बैंक डॉट सर्विस। सर्विस के अंदर आपके क्लासेस इंटरफेस will come in the service package, controller के अंदर all the controller will come in this controller package, then com dot citibank
Citibank dot DAO। तो इसमें आपके DAO implementation and DAO interface, implementation class and interface will come in this package। और पैकेज क्या हो सकता है, com dot citibank dot model। जितनी भी मॉडल क्लासेस हैं वो आपके इस पैकेज के अंदर आ जाएंगे। द क्लास विच कंटेन प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक सेग्रेगेटर इज कॉल्ड द मॉडल क्लासेस। आगे हम लोग इसको ऊप्स के कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉमन पैकेज क्या हो सकता है, कॉम डॉट सिटी बैंक डॉट, यहाँ पे हो सकता है आपका यूटिल पैकेज। यूटिल में क्या होगा, कुछ कॉमन स्टैटिक मेथड्स होंगे, तो वो आपका यूटिल पैकेज। इसके अलावा और भी पैकेज हो सकते हैं, बट दीज आर दी मिनिमम पैकेज, है ना। तो ये आपके सब में सेम ही रहने वाले हैं लगभग, ठीक है गाइस। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कॉमन पैकेज कितना है आपका, यहाँ पे कॉमन पैकेज कॉम डॉट सिटी बैंक, कॉम डॉट सिटी बैंक, तो ये आपको इसको बोला जाता है बेस पैकेज। ओके, बेस पैकेज, दिस इज कॉल्ड द बेस पैकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्प्रिंग बूट में एक मेन क्लास होती है जिसको बेस पैकेज में रखा जाता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि बेस पैकेज में रख देंगे उसको, तो दैट क्लास वो क्या करेगी, सबको आई मीन यू नो स्कैन कर लेगी। दिस विल स्कैन की वो सब पैकेज की सारी क्लासेस को, दैट क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द बेस पैकेज। ये बहुत जरूरी है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए एक बंदा है कंपनी में काम कर रहा है और कुछ टाइम बाद है नो ही लेफ्ट दैट कंपनी एंड समवन एल्स केम, किसी और ने ज्वाइन किया, तो ही नो द स्टैंडर्ड नहीं कि कंट्रोलर कहाँ मिलने वाले, कंट्रोल पैकेज में, सर्विस कहाँ है, सर्विस पैकेज में, डाउ कहाँ है, डाउ पैकेज में। अगर उसको लिखना है तो यानी नया कोई कंट्रोलर लिखना है, वो देखेगा कि फ्रंट रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, यूआई से आ रही है, तो फ्रंट उसको वो कंट्रोलर में ही ले, उसको हैंडल करने के लिए जो क्लास लिखी जाएगी ही विल राइट इन अ कंट्रोलर। अब नेक्स्ट जो बिजनेस क्लास, जिसको बिजनेस लेयर जिसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द सर्विस लेयर। तो बिजनेस से रिलेटेड आई मीन बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड जो क्लास इंप्लीमेंट की जाएगी, दैट विल बी इन अ सर्विस पैकेज। ओके, द क्लास विच इज परसिस्टिंग विद द डेटाबेस, जो क्लास आपकी डेटाबेस से परसिस्ट करेगी वो क्लास आपकी कहाँ लिखी जाएगी, दैट क्लास विल बी रिटन इन अ डाउ पैकेज। ओके, तो अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फॉर्म आपने फिल किया, फॉर्म आपने फिल किया, कुछ आपने यहाँ पे कुछ फील्ड्स आपने फिल कर दी। ओके, आपने आईडी डाला, नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ फिल किया, राइट, एड्रेस फिल किया, और उसके बाद आपने साइन इन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, साइन इन या साइन अप। यस सर, इसमें एसक्यूएल का पार्ट कौन सा है, डाटाबेस का? ये डेटाबेस एसक्यूएल ही है इसमें, दिस इज कॉल्ड द एसक्यूएल पार्ट। ओके, सो आपने यहाँ पे जैसे ना इस बटन पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट विल गो ऑन दिस कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट सर्विस, एंड सर्विस से रिक्वेस्ट डाउ, एंड डाउ से रिक्वेस्ट आपका डेटाबेस में, डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर होगा टेबल के फॉर्म में। हाउ डेटा विल स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, तो यहाँ पे आपका टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं हमारे साथ ही, ऐसा नहीं। दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे, बिहाइंड द सीन डेटाबेस जरूर होगा। ओके, चीजें कहीं भी हवाओं में नहीं हो रही हैं, एवरी एप्लीकेशन कंटेंट बिहाइंड द सीन देयर इज अ डेटाबेस। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि हो सकता है कि डायरेक्ट कोई सर्विस डेटाबेस को कंटेंट की हो, अदरवाइज एक सर्विस किसी दूसरी सर्विस को कॉल कर रही हो, वो सर्विस डेटाबेस कंटेंट कर रही हो, आई मीन डेटाबेस एसोसिएट हो उसके साथ में। यहाँ से मान लीजिए आपने 4 फील्ड फिल की, यहाँ पे क्या होगी, 4 कॉलम की एक टेबल होगी, आपका डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अगर इधर से इफ यू विल सी, दिस होल वुड बी द रिकॉर्ड। ओके, रो बोलेंगे इसको, और यहाँ से बोलेंगे हम लोग पर्टिकुलर ये क्या है आपका कॉलम है, दिस इज कॉल्ड द कॉलम, बट इट्स ओके। लेकिन आपका डेटा यहाँ से ले जाने का काम कौन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंटेनर, और वो कंटेनर इज नथिंग वन ऑफ मॉडल क्लास होती है। ओके, इसलिए हमने बोला एक मॉडल क्लास का पैकेज होता है, जिसमें क्या होगा, मान लीजिए आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। आपके मॉडल के अंदर फील्ड होंगे यहाँ पे आईडी, नेम, जैसे जावा में मैं लिखना है तो क्या लिखोगे, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, है ना, प्राइवेट ऐसे डेट भी होता है, डेट टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, देन डेट ऑफ बर्थ, and all the private property contain the segregator methods. So that model का class model, once we create the object of model class,
सारी वैल्यूज में सेट कर दी, देन दिस मॉडल क्लास विल एक्ट एज अ कंटेनर, यही आपका डेटा को लेके सर्विस पे लेके जाएगा, देन ऑन दी डाओ। और यहाँ से अगर JDBC यूज कर रहे हो, हियर हम कौन सा कोर जावा का कॉन्सेप्ट ही है JDBC, जो आपके ना जिसमें कोड लिखा जाता है कि जावा के कोड को आपको MySQL के साथ में SQL डेटाबेस के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, तो JDBC। इसकी जगह हो सकता है हम लोग हाइबरनेट यूज कर रहे होंगे, ये फ्रेमवर्क हो गया इसमें, ठीक है। तो इनमें हम लोग बाद में बात करें। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैकेज कितना इंपॉर्टेंट, अगर सारा पैकेज ना हो बहुत मुश्किल हो फिर कोड लिखना। ओके, सो एवरीवन नो, अगर किसी के पास नई रिक्वायरमेंट आती है तो ही नो हाउ ही नीड टू राइट द कंट्रोलर, देन द सर्विस, देन द डाओ, द मॉडल ऑफ फॉर इट, है ना, फिर वो डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो मेजर जो 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं डेटाबेस में, उन ऑपरेशन को बोला जाता है क्रूड, ठीक है। सी का मतलब होता है, सी स्टैंड फॉर क्रिएट, एंड आर स्टैंड फॉर रीड, एंड यू स्टैंड फॉर अपडेट, एंड आपका डी का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर डिलीट। ये मेजर 4 ऑपरेशन ही हैं। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप पिक करना, इनमें से ही कोई ना कोई हो सकता है किसी एप्लीकेशन में 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, है ना। आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, आइदर यू आर रीडिंग, है ना, क्रिएट एंड रीडिंग बोथ ऑपरेशन कर रहे हो, राइट। डिलीट वगैरह का बहुत रियरली यूज होता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इन दी कोर जावा वी विल क्रिएट वन क्रूड एप्लीकेशन, देन हम एडवांस पढ़ेंगे, देन अगेन वी विल क्रिएट वन क्रूड एप्लीकेशन, देन इन स्प्रिंग MVC we will create one crude, then Spring Boot we will create the crude, और इसके 2-3 एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो ही बन जाता है आपका क्या, माइक्रो सर्विस, छोटी छोटी माइक्रो सर्विस बन जाती हैं। और नाउअडेज देयर इज सो मच क्रेज ऑफ माइक्रो सर्विसेज। ओके, तो वी विल टॉक अबाउट इट। आई होप कि पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, कि कंट्रोलर में ऑल दी कंट्रोलर्स विल कम, सर्विस ऑल दी सर्विस रिलेटेड IMPL एंड इंटरफेस जो होते हैं वो सर्विस के अंदर आएंगे। डाओ पैकेज के अंदर आपके डाओ की इम्प्लीमेंटेशन क्लास एंड डाओ इंटरफेस आएंगे, और मॉडल के अंदर वो आएंगे जो आप यहाँ से डेटा जो फिल कर रहे हो UI से, और उसके पैरेलल में मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास एक्ट एज अ कंटेनर, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन जो ऊप्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यूटिल में क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाट विच क्लासेस वी राइट इन अ यूटिल। तो हो सकता है कि डाओ में आप क्लास लिख रहे हो, क्लास काफी लेंथी बन जा रही है, तो उसके लिए कुछ कॉमन कोड्स अगर आपको लिखना है, उन मेथड्स को आप यूटिल में लिख दो, डाओ से केवल उन्हें कॉल कर लो। उस टाइप का कोड हम लोग किसमें लिखेंगे, यूटिल पैकेज के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसका परफेक्ट मैं एक डायग्राम लेटर आई विल टेल यू, जस्ट आई अबाउट टू टेल कि हाउ दिस पैकेज इज, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट दी पैकेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें, what we are achieving through the package to resolve naming conflict, to provide security to the classes and interface so that outside person cannot access directly, and it improves the modularity of the application। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक आपका कंट्रोलर मॉड्यूल हो गया, एक सर्विस मॉड्यूल हो गया, एक डाओ मॉड्यूल हो गया, राइट। इन फ्यूचर अगर किसी को कोई इनहेंस करना है, मान लीजिए JDBC की जगह पे कुछ और मॉड्यूल आ गया, वो यूज करना है, तो वो क्या करेंगे, बंदा हायर करेंगे और डाउ लेयर पे ही काम करेंगे ओनली, इस लेयर को वो चेंज कर देंगे, लेटेस्ट इसको अपग्रेड कर देंगे, दैट इज नथिंग कॉल्ड द एनहांसमेंट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट हियर, क्योंकि मॉड्यूलर स्टाइल प्रोग्राम हमने कर रखी है। आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, इन 2 लेयर के बीच में लूज कपलिंग कैसे अचीव करते हैं, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। ओके, तो आई होप। हेलो सर, सर मेरा एक छोटा सा डाउट है कि मतलब एक बार सर डायग्राम पे जाना वापस। यस, हाँ सर, इसमें जैसे ये जो डाटा, पहला जो इसमें ये है आपका कॉलम, इसमें आपने बताया कि UI है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर है। तो सर ये रोल तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन सर जावा का एज अ कंपनी में क्या रोल है, क्या वर्क है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब जावा का क्या काम होता है। ये जो 3 लेयर्स है ना, ये जो 3 लेयर्स है ना,
ये जावा वाले काम करते हैं इस पे ना 3 लेयर्स में, ठीक है। ये जो इसमें कंट्रोलर हो गया, सर्विस हो गया, डाव हो गया, और इसकी जगह जावा ही नहीं, यहाँ .NET भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है। अब ये रोल क्या है वो हम समझते हैं। आप ऐसे सोचो, अगर यहाँ से इस फॉर्म से डेटा फिल करके डायरेक्ट अगर डेटाबेस में सेव करते हैं, तब तो आपका डेटा कोई भी यहाँ से है ना इजिली हैक कर लेगा डेटा को, राइट। तो बीच में ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपको डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन इन द सेंस कि आपको डेटा को सॉर्ट करना है, कुछ फिल्टर आउट करना है, सम अदर ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, तो आप कहाँ करोगे, बिजनेस लेयर पे आप करोगे, राइट। अदरवाइज आप कैसे, मतलब ना डेटा में मैनिपुलेशन हाउ यू कैन डू दैट, राइट। डेटाबेस तो स्टोर कर रहा है, यूआई पे ओनली शो कर रहे हैं हम लोग, देन हाउ वी कैन डू दैट। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे बीच में ये जो लेयर्स है, इससे क्या हो रहा है, हम लोग सिक्योरिटी, वी आर अचीविंग द सिक्योरिटी, ओके। और आपका डेटा में कुछ मैनिपुलेशन आपको करना है, दैट वी इजिली वी कैन डू दैट, ओके। और आपका डेटा इतना सिक्योर हो गया है कि नो वन कैन, है ना, व्हाट वी कैन हैक दैट वन, दैट डेटा, ओके। तो वो चीज इसमें आता है, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसा नहीं कि यूआई से आपने HTML में फिल किया और डेटाबेस में सेव कर दिया, इजिली एनीवन कैन हैक योर डेटा एंड एनीथिंग कैन डू, राइट। तो बैंकिंग टाइप के एप्लीकेशन, इंश्योरेंस टाइप के एप्लीकेशंस which we develops by using the Java. Not only that, you know, large scale, mid scale, small scale applications also we can develop by the Java. Otherwise, you know, earlier we used to say कि आपको लार्ज एप्लीकेशन बनाना है जावा यूज करिए, मिड एप्लीकेशन बनाना है आप .NET यूज करिए, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बनाना है आपको PHP यूज कर लो आप, राइट। लेकिन आजकल आप देखोगे इसमें हर तरह का एप्लीकेशन बन जाता है जावा के अंदर, तो दैट इज द, अब हम लोग है ना, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Any other question, guys? So here I think we understand the importance of package, okay. So you also should be the familiar of this package, how we can do that, okay. And there is one universally concept convention to name package to use इंटरनेट डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर। तो पैकेज हमेशा हम लोग कैसे करते हैं, इंटरनेट डोमेन को आप उल्टा कर दो। जैसे जनरली क्या लिखते हैं हम लोग, है ना, जैसे ICICibank.com, तो इन्होंने कॉम पहले लिख दिया, फिर ICIC लिख रहे हैं, तो com.ICICbank.loan, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डोमेन, ये जो दिख रहा है ना आपको, com.ICIC क्या होगा, डोमेन, इट्स अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम का क्या कर दिया यहाँ पे, रिवर्स, उल्टा कर दिया, तो दिस इज, ये आपका पैकेज बन गया। एंड हेयर इज अ लोन, क्या हो गया इसका, मॉड्यूल हो गया, लोन मॉड्यूल हो गया। एंड हाउस लोन क्या हो गया इसमें, हाउसिंग लोन क्या हो गया, सब मॉड्यूल हो गया, ओके। देन अकाउंट क्या हो गई, इसकी क्लासेस हो गई। तो हाउस लोन जिन जिन ने ले रखा होगा उससे रिलेटेड जिन जिन क्लासेस होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगी, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ऑल दी क्लासेस विल कम। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे पर्सनल लोन बनाना है तो कैसे करूंगा, com.ICICbank.loan.personal लोन, फिर डॉट अकाउंट, तो पर्सनल लोन से रिलेटेड जो अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं वो आपके पर्सनल लोन वाले में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे कुछ और यहाँ पे करना है तो मैं ये तो बेस पैकेज तो मैं सेम ही रखने वाला हूँ, राइट, बट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पैकेज चेंज हो जाएगा, ओके, सब मॉड्यूल आपका चेंज हो जाएगा। सो ये बेसिकली स्टैंडर्ड है विच वी नीड टू फॉलो, को डोमेन नेम का आप उल्टा कर दो, ओके। So, okay, so remaining things we are going to discuss tomorrow. Anyone have any question related to package? Any question related to package, guys? सर पैकेज में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सब हेड भी हो सकते हैं, जैसे सब मॉड्यूल नेम और भी सब हेड हो सकते हैं जैसे, हाँ, there could be a multiple sub module, there could be a multiple module, है ना। तो आप, हम लोग तो यहाँ पे ओनली है ना 3-4 अभी समझा हम लोगों ने कि either it can be controller, service, DAO, there could be, यहाँ पे हो सकता है कि आपके 20+ 30+ आपके जैसे ना पैकेजेज हो एप्लीकेशन के अंदर, इट डिपेंड कि कितना बड़ा आपका एप्लीकेशन है।
जैसे सर पैकेज के अंदर हम इतने सारी क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्लास के अंदर भी जैसे अगर और हम एडवांस लेवल में जब जावा जाते हैं तो क्लास के अंदर भी कुछ सब क्लास भी क्रिएट हो जाते हैं क्या? क्लास के अंदर सब क्लास, और क्लास जैसे के पैकेज अंदर के अगर अंदर क्लास हमने बोलोगे उसको कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इनर क्लास। क्लास के अंदर अगर क्लास कोई आपको बनानी है तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द इनर क्लास। ओके, बट वो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं है, वो तो रियरली क्रिएट करते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं कि आपका वो ऐसा मैंडेटरी, वो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको क्लास के अंदर क्लास बनानी है, उससे और क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। तो वो तो रियरली अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है देन वी विल गो, अदरवाइज वी विल अवॉइड इट। एक क्लास आपकी एक ही है ना, क्लास शुड बी फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सॉलिड प्रिंसिपल है, वन प्रिंसिपल इज कॉल्ड सॉलिड प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला जाता है, सॉलिड प्रिंसिपल का जो पहला जो एस है इसका मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्लास को सिंपल रखना चाहिए और उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो या एनी अदर क्वेश्चन? सो आई थिंक जावा सी, अगर आपको जैसे, हालांकि इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं, हम तो इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो पैकेज में अगर क्लासेस हैं तो आप कैसे कंपाइल करोगे एंड हाउ यू विल रन इट, उसका ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। द जनरेटेड क्लास फाइल विल बी प्लेस्ड इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, दिस इज कॉल्ड, एंड java c hyphen d dot hi jobs dot java, Hyderabad.java. So they're just trying to explain the destination to place generated class file, and dot का मतलब होता है current working directory. So generated class file will be placed into corresponding package. चलो इसके बारे में ना we'll talk about tomorrow. Okay. So I hope कि हम लोगों को थोड़ा सा पैकेज के बारे में आइडिया लग गया होगा. Okay. The remaining concept we are going to discuss tomorrow of this package. Okay. सर कल तो सैटरडे है। Tomorrow is Saturday. Class modifiers. Modifiers बहुत important concept है. So modifiers we will discuss. And tomorrow is Saturday ना, तो let me check one thing कि मैंने शायद क्लास तो शेड्यूल कर दिया ना. So ज्वाइन काफी कम लोग करते हैं ना. So मॉक इंटरव्यू के लिए प्लीज बी अवेलेबल. हाँ सर, लास्ट सैटरडे हम भी नहीं आ पाए थे, तबीयत थोड़ी खराब थी। So tomorrow would be the mock interview. Let me check here. Please let us the topic for the interview. Okay, so currently import we talk like types of import, types of variable. So those we'll focus towards it. Okay. So types of, and we talk about the loops concept. So that is common for each and every language. Some questions I can pick from the loop, otherwise most probably from the static import and types of import and importance of it. Okay, so that would be, not, the interview will not go so much lengthy. Okay, just shortly we'll discuss if we get time. So one of tools we can discuss. Okay, so and in this Saturday we are also going to conduct the tools classes. There are so many tools in daily life we use while we develop the applications. So one by one we will complete those tools also. Okay, तो हम लोग जैसे मॉक इंटरव्यू फिनिश होगा उसके बाद we will pick some introduction of